بچائی ہیں۔ آگ کی وجہ سے وین مکمل طور پر جل گئی ہے۔ وین میں 10 اساتذہ سوار تھی۔ مزید اطلاعات بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے بورے والا میں، جہاں پر خواتین اساتذہ سے بھری وین میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ٹیچرز نے چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائی ہیں، جبکہ آگ کی وجہ سے وین مکمل طور پر خاک میں تبدیل ہو چکی ہے اور وین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 اساتذہ سوار تھیں۔ اور یہ خبر ہے بورے والا سے، جہاں پر خواتین اساتذہ سے بھری وین میں آگ بھڑکی ہے۔ ٹیچرز نے چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائی ہے، جبکہ آگ کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وین اس وقت مکمل طور پر جل گئی ہے۔ امدادی کارروائیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ایم پاکس کا دوسرا کیس بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خلیجی ملک سے آنے والے مریض میں کیس رپورٹ ہوا ہے۔ مشتبہ مریض کو پشاور ایئرپورٹ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ٹیسٹ کے بعد ایم پاکس مثبت آیا ہے۔ وزارت صحت نے بھی ایم پاکس کے دوسرے کیس کی تصدیق کر دی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایم پاکس کا دوسرا کیس بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے خلیجی ملک سے آنے والے مریض میں کیس رپورٹ ہوا ہے، جبکہ مشتبہ مریض کو پشاور ایئرپورٹ سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں پر ٹیسٹ کے بعد ایم پاکس مثبت آیا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، عائشہ شعیب سے ہم جان لیتے ہیں۔ بتائے گا عائشہ۔ جی بالکل، دیکھیے ایم پاکس کا دوسرا کیس پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے۔ کیس جو ہے وہ خلیجی ممالک کی علامات کے ساتھ وہاں سے رپورٹ ہوا تھا۔ پشاور ایئرپورٹ پر ہیلتھ ڈیسک نے بروقت اسپتال اس کو منتقل کیا مریض کو، جس کا باقاعدہ سے ٹیسٹ ہوا اور ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد یہ پتا چلا کہ مریض میں ایم پاکس جو ہے وہ مثبت ہے۔ اسی حوالے سے وزارت صحت نے تصدیق بھی کر دی اور وزارت صحت کی جانب سے یہ بیان آ رہا ہے کہ تمام تر صورتحال کی مسلسل نگرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ کوارڈینیٹر برائے صحت ڈاکٹر مختار احمد بٹ کا کہنا ہے کہ تمام ایئرپورٹ پر اسکریننگ اور سرویلنس کا مؤثر نظام موجود ہے۔ بارڈر ہیلتھ کا عملہ ایئرپورٹس اور انٹر پوائنٹ پر مستعدی کام کر رہا ہے اور عوام کو وباؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کا عمل بھی جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عائشہ۔ کچے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کی نماز جنازہ میں شرکت ہوئی۔ سیکریٹری داخلہ، آئی جی پنجاب سمیت پولیس اور عسکری حکام کی بھی شرکت ہوئی۔ شہداء کے اہل خانہ بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ رحیم یار خان کچے کے علاقے ماشکا میں ڈاکوؤں کے حملے میں 12 پولیس اہلکار شہید ہوئے، جبکہ 7 زخمی ہوئے تھے۔ شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ کے بعد تدفین کے لیے میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ شہداء کے جسد خاکی کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحیم یار خان کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا حملہ، 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں۔ 5 لاپتہ پولیس اہلکاروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ایک زخمی اہلکار ہاسپٹل منتقل کرتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے کچے کے علاقے ماشکا میں راکٹ لانچرز اور جدید ہتھیاروں سے پولیس گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ سمیت سیاسی رہنماؤں نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئی جی پنجاب نے آر پی او ڈی جی خان سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کچا ماشکا میں پولیس پر حملے کا مرکزی ملزم بشیر شر انجام کو پہنچ گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رات گئے پولیس آپریشن میں کچا ایریا کا خطرناک ڈاکو بشیر شر کیفٹے کردار کو پہنچ چکا ہے۔ بشیر شر گزشتہ روز پولیس اہلکاروں پر حملے کا مرکزی ملزم تھا۔ پولیس کی کارروائی میں بشیر شر کے 5 ساتھی بھی شدید زخمی ہوئے ہیں۔
आईजी पंजाब जवानों का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गए। हॉस्पिटल में डाकुओं के हमले में जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की। डॉक्टर अनवर उस्मान का कहना है कि शहीद एहलकारों के खून का बदला जरूर लेंगे। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां पुलिस का मोराल पस्त नहीं कर सकती। हमला करने वाले बदनामी जमाना डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान भी रात गए शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचे, जख्मी पुलिस एहलकारों की आयादत की और हमले की तफसीलात भी जानी है। एडिशनल आईजी ने कहा है कि कच्चे में ऑपरेशन के लिए टीम तश्कील दे दी है। फोर्सेस का जॉइंट ऑपरेशन किया जाएगा। डाकुओं को घर में घुसकर मारेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज जख्मी एहलकारों से मुलाकात की है। पीटीआई सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आईजी पंजाब को खुद कच्चे में जाना चाहिए। कच्चे में डाकू राज कायम है। पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकू बेलगाम है। पुलिस सिर्फ पीटीआई कारकुनान को पकड़ने में लगी हुई है। डाकू कार्रवाइयां करने के बावजूद आजाद है। मुल्क का निजाम तबाह हो चुका। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कराची में कारसाज हादसे में बाप बेटी की हलाकत के मामले पर नया इंकशाफ सामने आया है। हादसे से पहले मुलजिमा ने एक कार और मोटरसाइकिल सवार को भी टक्कर मारी थी। हादसे की नई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं उबैद शाह। डीआईजी ईस्ट असफर महेसर 4 रोज बाद कारसाज हादसे में जांभग फैमिली के घर पहुंच गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस भी साथ थीं। पुलिस के आला ऑफिसर्स ने अहले खाना से ताज़ियत की। केस में अब तक की पेशरफ्त से भी आगाह किया। डिटेल्स हम जाने थे। उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा उबैद। जी बिल्कुल, डीआईजी ईस्ट असफर मैसर कारसाज हादसे का शिकार वालिद और बेटी के घर 4 दिन बाद पहुंच गए। डीआईजी ईस्ट असफर मैसर के हमरा एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन अलीना राजपर भी मौजूद थी। पुलिस के आला अफसरान ने अहले खाना से ताज़ियत की। केस में की जाने वाली अब तक की पेशरफ्त, तफ्तीश और तमाम चीजों से अहले खाना को आगाह किया। पुलिस मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है, ऐसा कहना था डीआईजी ईस्ट का। अहले खाना को इंसाफ की फराहमी तक की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई है और डीआईजी ईस्ट का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन किसी दबाव का शिकार नहीं है और वो मुतासरा फैमिली के साथ इन्वेस्टिगेशन में हर मुमकिन ताउन करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका उबैद। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और आरआरएफ में इफरादी कुव्वत को असर नौ मुनज़्ज़म करने का फैसला। आईजी सिंध ने हुकाम से अफरादी कुव्वत और वसाइल की तफसीलात तलब कर ली। पीएचए का लाहौर में पीको रोड पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे मरहले में दाखिल। वागुजार कराई गई अराजी पर खुसूसी शजरकारी मुहिम शुरू। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, सूबे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला हुआ है। वज़ीर दाखिला और कानून ज़िया लंजार कहते हैं कि आइंदा हफ्ते सिंध असेंबली में कानून साजी की जाएगी। 18वीं तरमीम में नारकोटिक्स का महकमा सूबों को मुंतकिल तो हुआ मगर कोई बाज़ाबिता कानून मौजूद नहीं था। एएनएफ के कवानीन के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान को एक्साइज और पुलिस हुक्काम अदालतों में पेश करते थे। अब सूबे भर में अलहदा नारकोटिक्स फोर्स होगी। इस खबर की मज़ीद मालूमात क्या है, शफकत अजीज हमें बताएंगे। बताइएगा शफकत। देखिए, सिंध हुकूमत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। सूबे में एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला कानून ज़िया लंजार कहते हैं कि आइंदा हफ्ते सिंध असेंबली में कानून साजी की जाएगी। 18वीं तरमीम में नारकोटिक्स का महकमा सूबों को मुंतकिल तो हो गया था लेकिन कोई बाज़ाब्ता कानून नहीं था। इस हवाले से एएनएफ कानून के तहत गिरफ्तार मुल्ज़मान को एक्साइज और पुलिस हुकाम जो अदालतों में पेश करते थे। अब सूबे में अलहदा नारकोटिक्स फोर्स होगी। इस हवाले से इनकी तमाम तर जो दफातर हैं वो भी अलग बनाए जाएंगे। इनकी वर्दियां भी अलग होंगी जो बगैर किसी रुकावट के जो है वो काम किए जा करेंगे। जी शुक्रिया आपका शफकत अजीज। विफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का फैसला। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स को 15 रोज में बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। 14 करोड़ सार्फिन के मुतासिर होने का खदशा है। मुल्क भर में 4200 यूटिलिटी स्टोर्स हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का दायरा चारों सूबों के साथ आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान तक भी फैला हुआ है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 14,500 मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। मुल्क भर में 14 करोड़ के करीब शहरी यूटिलिटी स्टोर्स से सस्ती अशिया हासिल करते हैं। कल
जलसा इसलिए मुलतवी किया कि कहीं नया 9 मई गले ना पड़ जाए। कल का जलसा होना चाहिए था मगर नहीं हुआ। 8 सितंबर को अगर किसी ने रोका तो अब कोई नहीं रुकेगा। बानी पीटीआई ने जेल से धमकी लगा दी। कहते हैं कि ये सब चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए हो रहा है। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को तोसी ना दे सके तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी पर असर अंदाज होंगे। काजी फाइजीसा के बाद अपना बंदा चीफ जस्टिस लगाएंगे। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जारी थी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब किया गया है। मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी शिरकत करेंगे। इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास 25 अगस्त को गवर्नर हाउस लाहौर में तलब कर लिया गया है, जबकि मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान भी शिरकत करेंगे। मज़ीद मालूमात क्या है उमर दराज से हम जान लेते हैं। उमर, बताइएगा इजलास में क्या कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शेयरिंग के हवाले से अपडेट जो है और इस हवाले से जवाबदारी की मुलाकात के बाद पेशरफ्त हुई है। दोनों जमातों की कायम कमेटी की बात इजलास में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका उमर दराज। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। कहती है कि फितना पार्टी तस्लीम कर ले, इसके सत्तू मुक चुके हैं। गिरगिट रंग बदलता है, इसकी फितरत नहीं बदलती। तहरीक इंसाफ गंगा नहा कर भी आ जाए तो 9 मई के सियाह धब्बे नहीं मिट सकते। धरने और जलसे अडियाला जेल के कैदी का कारोबार है। 1 साल से फितना पार्टी जलसे जुलूस ना करने से शदीद माली बहरान का शिकार है। इनके भयानक चेहरे और बदबूदार सियासत की हकीकत आया हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 5-5 हजार रुपए बांटने की वीडियो केपी की हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। अडियाला जेल के कैदी के साथ कौम नहीं, दिहाड़ीदार और डिजिटल दहशतगर्द है। पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतिक की बात करें तो जूनियर ऑफिसर्स की बड़े ओहदों पर तैनाती कर दी है। नईम गौस की आर्जी तौर पर ग्रेड 21 में तरक्की हुई है। सेक्रेटरी लेबर एंड HR तैनात कर दिया गया है। इदरीस शेख से हम बात कर लेते हैं। इदरीस, ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो ग्रेड होते हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ जो है अफसरान की तैनाती इस सिलसिले में की जाती है। मुतअद्दिद अफसरान जिनकी हाल ही में प्रमोशन हुई, ताहाल जो है वो उन्हीं ओहदों पर जो है वो इस सिलसिले में उनको फायज करने का अहकाम पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए। नहीं, वो उसको ग्रेड 21 में तरक्की के बाद इस ओहदे को भी तरक्की दे दी गई और सेक्रेटरी लेबर एंड HR के ओहदे पर अब जो है आमतौर पर 20वें ग्रेड का अफसर फायज होते हैं, जबकि नईम गौस जो है वो सेक्रेटरी लेबर एंड HR उनको कायम रखने के लिए ओहदे को भी जो है ग्रेड 21 का कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है कैप्टन रिटायर्ड नज़ीम नासिर को 19वें ग्रेड में तरक्की के बाद इस ओहदे को जो है वो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर ही फायज है। आमतौर पर डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर ग्रेड 18 का अफसर तैनात होता है और ग्रेड 19 के ये अफसर हैं जिनको तैनाती के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इदरीस। लेस्को इंतजामिया के दोहरे मयार की बात करें तो रिकवरी टारगेट पूरा न होने पर मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयां, ऑफिसर्स को छूट दे दी गई है। मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए जबकि ऑफिसर्स का सजा के तौर पर तबादला होने लगा। जराये के मुताबिक रिकवरी टारगेट पूरा न होने का मलबा लाइनमैन और मीटर रीडर्स पर डाला जा रहा है। ये माजरा क्या है, अदनान अजीज हमें बताएंगे। बताइए अदनान। जी बिल्कुल, जराये के मुताबिक जो SDOs हैं वो डेट डिफॉल्टर्स की रिकवरी ना होने पर DCO स्टाफ को शोकाज और मुलाजमत से बर्खास्त कर रहे हैं। SDOs अपनी मुबैना नाअहली की सजा भी मुलाजमीन को दे रहे हैं। लेस्को मुलाजमीन का ये कहना है कि सैकड़ों मुलाजमीन मुलाजमत से बर्खास्त हो गए, मगर अफसरान के खिलाफ जो इंक्वायरी हैं वो सर्द खाने में डाली जाने लगी। रोजाना की बुनियाद पर 400 से 500 बीड़ी चोर पकड़े जाने पर भी मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इस हवाले लेस्को मुलाजमीन का भी ये कहना है कि लेस्को का अमला बगैर ओवर टाइम के
12 घंटे से जायद काम कर रहा है, लेकिन जो सजाएं हैं वो सिर्फ मुलाजमीन को मिल रही हैं, लेकिन जो लेस्को के अफसरान हैं उनके साथ क्योंकि दोहरा म्यार किया जा रहा है, उनको सिर्फ तबादले किए जा रहे हैं। इस वजह से लेस्को इंतजामिया को चाहिए कि वो मेरिट के बरक्स जो है वो फैसले करे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अदनान। वज़ीर आला सिंध का ईरान बस हादसे में हर शहीद खानदान को 50 लाख और जख्मियों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। दूसरी तरफ शोहदा की मैयतें वापस लाने के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने मैयतों और जख्मियों को लाने के लिए C-130 तैयारा ईरान भेजा है। तफसीलात हम जान लेते हैं शफकत अजीज से। जी शफकत अजीज। देखिए, सिंध हुकूमत का जो है वो एक अहम ऐलान सामने आया है, जिसमें वज़ीर सिंध ने ईरान हादसे में शोहदा और जख्मियों के लिए माली मदद का ऐलान किया है। वज़ीर सिंध ने शोहदा के वर्सा के लिए फी शहीद खानदान 50 लाख रुपए, जबकि जख्मियों के लिए जो है वो 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हुकूमत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शोहदा को वापस लाने का भी मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। जैकबाबाद एयरपोर्ट पर जो तैयारा है, खुसूसी तैयारा है C-130 तैयारा, वो रात 1 बजे लैंड करेगा, जिसके बाद जो मैयतें हैं वो आबाई इलाकों वहाँ से पहुँचाई जाएंगी। जो वज़ीर सिंध है उनका ये कहना है कि जिस जख्मी को अगर जरूरत हुई कराची भी उनको मुंतकिल किया जाएगा। तमाम तरह सवाल से इंतजामात जो है इंतजामात भी मुकम्मल हो चुके हैं। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका शफकत। गुजरांवाला से खबर है, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान विकी डॉन गैंग का